Hello students, today we are going to learn about useful and harmful microbes. What do you mean by useful microbes and what do you mean by harmful microbes? There are so many microbes actually available in our surroundings. Okay, so microbes are generally the organisms we cannot see with our regular eyes. Okay, so one by one we are going to see exactly what it is. So useful microorganisms are lactobacilli and rhizobium and yeast. These all are useful microorganisms. And if we talk about the harmful microorganism, Clostridium is a kind of a harmful microorganisms. Okay, so there are so many microorganisms present. Some of them are useful, whereas some of them are harmful. That means they create adverse effect on a human body, right? Then let's have a look at this picture. Here you can see unicellular organisms. The first one is amoeba, paramecium and euglena. These all organisms are unicellular organisms. Okay, so the microbes are organisms which cannot be seen through naked eyes. They may be single celled or multicellular organisms. तो ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम अपनी नॉर्मल खुली आंखों से नहीं देख सकते, और जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नॉर्मली हम नहीं देख पाते उन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं. ठीक है, और मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं और उसमें बहुत सारे मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. ठीक है, if you have a look if you have a look at what is meant by microbes and what are the characteristics of microbes. Okay, so the first of all, the living organisms which cannot be seen with the naked eyes but those are all around us are called as microbes. And secondly, these cells can be seen through और अंडर माइक्रोस्कोप. सो हर एक ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास मौजूद है लेकिन हमारी अपनी खुली आंखों से हम नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी दीज माइक्रोब्स थ्रू आवर नेकेड आइज. एंड सेकेंडली, अगर हमें उनको देखना है देन वी हैव टू यूज some equipments such as microscope, so we can observe many microorganisms under the microscope. Okay, the next question comes in mind, that is how did you observe microbes. तो microbes को आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप? यस, अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट. तो क्या करना है इसके लिए? इफ वी एड स्टेन ऑफ स्लाइड कंसिस्टिंग अ ड्रॉप ऑफ फ्रेश बटर मिल्क. ओके, अगर एक फ्रेश बटर मिल्क का ड्रॉप आपने अगर स्लाइड पे लिया और उसमें स्टेन डाल दिया, स्टेन इज अ कलरिंग agent that will give and color to the bacteria, which will make bacteria visible to your eyes in a color. Okay, so you will be able to see the lactobacilli under the microscope. Okay, so this is how you can see the microbes under the microscope. Then the question comes in your mind, how they are relate to our daily life. तो ये माइक्रोब्स जो है वो हमारे डेली लाइफ में हमसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, है ना? तो वो देखेंगे. सो मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क इज डन बाय लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया. हमारे घर में ओके जो कर्ड बनता है ना, सो ऑल द योगर्ट और कर्ड वी आर मेकिंग इन आवर हाउसेस, सो मेन रोल लैक्टोबैसिलाई, दिस बैक्टीरिया इज प्लेइंग मेन रोल इनटू मेकिंग ऑफ योगर्ट. ओके, सेम वे ईस्ट इज यूजफुल फॉर द बेकिंग प्रोसेसेस. तो बेकिंग के प्रोडक्ट्स जो है बनते हैं ना, जिन प्रोडक्ट को हम वी कैन मेक द प्रोडक्ट्स बाय बेकिंग. ओके, सो उसमें ईस्ट को यूज किया जाता है. ठीक है, एंड हार्मफुल बैक्टीरिया कॉजेस वेरियस डिसीजेस एंड अफेक्ट आवर हेल्थ. जो बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल होते हैं, जो हमारे जो बॉडी को इफेक्ट करते हैं, एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, राइट.
तो वो उसकी उन हार्मफुल बैक्टीरियाज की वजह से क्या होता है, इंसान बीमार हो जाता है, राइट. नॉट ओनली इंसान बट animals also can get affected by the harmful bacteria and they also can catch so many other diseases. Okay, now if you have a look at the lactobacilli bacteria, you can see in the picture how they look. Okay, they are lactobacilli, a kind of bacteria actually. Lactobacilli is what? They are bacteria. They are minute, they are very small. Okay, and रेक्टेंगुलर इन शेप. जो लैक्टोबैसिलाई होते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं, द सेम वे यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ योगर्ट इज मेड फ्रॉम द मिल्क. अगर हम बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके अगर योगर्ट बनाते हैं तो वो कैसे बनता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन दिस प्रोसेस. तो इन दिस ये प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है. ओके, सो पहले तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो पहला पुराना जो योगर्ट बना हुआ होता है ना, उसका छोटा सा हिस्सा बाजू में रखा हुआ होता है. ठीक है, सो तो उसको कहते हैं कल्चर. द कल्चर ऑफ प्रीवियस योगर्ट कंटेनिंग लैक्टोबैसिलाई. तो उसी प्रीवियस योगर्ट में लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया भी होता है. उस बैक्टीरिया को ल्यूक वार्म मिल्क में मिला दिया जाता है, राइट. तो मिलाने के बाद व्हाट हैपन्स, दिस बैक्टीरिया ब्रिंग्स अबाउट द केमिकल चेंज इन द मिल्क. और ये बैक्टीरिया क्या करता है, उस मिल्क में केमिकल चेंजेस लाता है. तो कौन से टाइप के केमिकल चेंजेस लाता है, इट द लैक्टोज शुगर इन द मिल्क कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड. ओके, सो मिल्क के अंदर, मिल्क में जो लैक्टोज शुगर होती है ना, दैट शुगर गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. ओके, अब लैक्टिक एसिड बना तो उसकी वजह से क्या होगा, द पीएच ऑफ दैट मिल्क विल बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द लैक्टिक एसिड. हमें पता है जब पीएच नीचे नीचे जैसे जाता है वैसे एसिडिक लेवल बढ़ जाती है किसी भी सॉल्यूशन की, राइट. तो उसकी वजह से क्या होगा, वो सॉल्यूशन एसिडिक बन जाएगा, राइट. तो उसके वजह जैसे वो ये प्रोसेस होती है, इसी को फर्मेंटेशन की प्रोसेस पे कहते हैं कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द लैक्टिक एसिड, लैक्टोज शुगर इनटू द लैक्टिक एसिड, इजंट इट. So milk protein get separated from the other constituents and coagulation of milk occurs. और इसकी वजह से फिर क्या होता है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं मिल्क के अंदर जो बाकी के कंपोनेंट होते हैं उससे. ठीक है, और उससे क्या बन जाते हैं, वो कोगुलेट हो जाते हैं, जैसे एक सॉलिडिफाइड मटेरियल बन जाता है, राइट. जैसे आपने अगर योगर्ट देखा है तो आपको दिखाई देगा उसके अंदर कुछ सॉलिड टाइप ऐसे गुठलियाँ बनती है, राइट. तो उसी को क्या कहते हैं, हम योगर्ट कहते हैं, राइट. और बाकी का जो मटेरियल होता है, और ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना, उसी की वजह से उसको क्या टेस्ट आती है, सोर टेस्ट आती है ना, खट्टा बन जाता है थोड़ा सा वो. दैट इज बिकॉज ऑफ द एसिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ओके, and this fermentation and coagulation process turns milk into the yogurt. और यही fermentation की प्रोसेस की वजह से जो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और प्रोटीन का कोएगुलेशन हो जाता है, उसी की वजह से क्या बन जाता है, योगर्ट बन जाता है, isn't it? So the next point is, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या दिखाई दिया है, बटर मिल्क. सो देयर वी कैन मेक सो मेनी प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई. ओके, द फर्स्ट वन वी हैव सीन ऑलरेडी, योगर्ट, देन द बटर मिल्क, घी, देन चीज, श्रीखंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, राइट. देन लेट्स हैव अ लुक एट द यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई. क्या क्या यूजेस है लैक्टोबैसिलाई के, वो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे. पहले तो मिल्क प्रोडक्ट. ओके, सो वी कैन प्रोड्यूस सो मेनी मिल्क प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई. देन साइडर, कोको, पिकल ऑफ वेरियस वेजिटेबल, जैसे कि फ्रूट जूस होते हैं ना, वो फ्रूट जूस बना सकते हैं कोको बीन्स की हेल्प से. बहुत सारे हम लोग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. उसके बाद में पिकल ऑफ वेजिटेबल्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स के हम लोग पिकल्स बना सकते हैं, अचार जिसको कहते हैं ना. सो ये इन सारी चीज़ों में भी लैक्टोबैसिलाई यूज़ होता है, ठीक है. देन वाइन एंड सम टाइप ऑफ ब्रेड्स,
ओके, जैसे आपको पता है नासिक में जो ग्रेप्स होते हैं उनसे वाइन्स बनाई जाती है, उनमें भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाती है। तो वाइन्स और वेरियस अदर ब्रेड्स, है ना, वो ब्रेड्स भी क्या किसके यूज़ से बनते हैं, लैक्टोबैसिलाई के यूज़ से बना सकते हैं। वेरियस प्रोबायोटिक्स मतलब हमारे जो स्टमक के अंदर, ओके, हमारी जो जीआई ट्रैक है उसमें स्टमक है, बराबर है, उसके अंदर इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, बराबर है। तो हमारे पेट में बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो तो ये लैक्टोबैसिलस भी क्या है, एक गुड बैक्टीरिया है जो पेट के अंदर, जैसे हमने अगर एक्सटर्नली भी ले लिया तो वो हार्मफुल नहीं होते। वो क्या करते हैं, हमारा जो जीआई फ्लोरा कहते हैं, ठीक है, तो वो जीआई फ्लोरा जो होता है उसको मेंटेन करते हैं, और उसकी वजह से जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो भी मर जाते हैं। ओके, so this actually lactobacillus is also responsible for the killing of harmful bacteria. Okay, so this way it can help our to maintain our immunity, okay, to fight against the various diseases, because अगर harmful bacteria हमारे पेट में रहेंगे तो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे, और उसकी वजह से क्या होंगे, बहुत सारे डिसीजेस भी होंगे। ओके, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक कहते हैं, जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस को बहुत ही स्मूथ बना देता है। लिव इन फॉर्डर ऑफर टू द डोमेस्टिक कैटल। अभी डोमेस्टिक कैटल मतलब हमारे यहाँ पे जो पशु होते हैं ना, जो पालते हैं, ठीक है, तो उनका जो खाना होता है ना, जो आपको पता है खेत में धान उगता है, बराबर है, तो उसके बाद में वो जो बचता है, उसका जो बचा हुआ पोर्शन होता है ना, उसके उसमें भी उसका भी फर्मेंटेशन किया जाता है। ओके, सो फर्मेंटेशन करने के बाद फिर उसको डोमेस्टिक कैटल्स को खाने के लिए दिया जाता है, जिसको फॉडर कहते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया जा सकता है। देन ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। अगर किसी को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, जैसे कि पेट में हम बोलते हैं ना, पेट में गड़बड़ है, गैस हुआ है, बराबर है, सो दीज ऑल एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हैपन बिकॉज ऑफ दी बिकॉज देर इज़ नो प्रॉपर डाइजेशन प्रोसेस। और डाइजेशन की प्रोसेस अगर प्रॉपर करनी है तो गुड बैक्टीरियाज की क्वांटिटी सही प्रमाण में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अगर डिस्कम्फर्ट हो गया हमारे एब्डोमिनल में, तो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता